Good afternoon, everybody. So we are here to discuss the new world order in this prestigious event hosted annually by ABP Network, the ideas of India. And here I'd be using a bit of English and a bit of Hindi, both, because I represent ABP News, which is a Hindi news channel, and that is where I earn my bread and butter from. तो आज की तारीख में the topic of discussion worldwide is where does India stand in the new world order? And we've been positioning ourselves, be it the recent AI summit, be it free trade agreements with the UK, with EU, or the trade agreement with the United States of America, or reaching out to China, because in diplomacy, there's this famous saying, there are no permanent friends, no permanent enemies. There are permanent interests. तो आज की तारीख में भारत अपने आप को कहाँ पाता है? क्योंकि हमने एक लक्ष्य बनाया है that we have to be a developed country by 2047 when we celebrate 100 years of our independence. तो दुनिया में हम reach out भी कर रहे हैं. लेकिन हमारा जो ये बर्रे सगीर है, जो ये खित्ता है, the South Asian subcontinent. Where does India stand? I'm reminded of Atal Bihari Vajpayee's famous words. We can change our friends, we can't change our neighbors. तो दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं, पर जो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे हमारे दोस्ताना संबंध हैं भी या नहीं. और ये खित्ता बड़ा ही असंतुलित दिखा है पिछले 4-5 सालों से. यहाँ दुनिया भर के प्रदर्शन हो रहे हैं, तख्ता पलट हो रहे हैं. The governments are being ousted. And elections are taking place. तो 3 ऐसे शख्स जिन्होंने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने जो मकाम अब हासिल किया है और जहां जाने की हमारी तमन्ना है उसमें बेहतरीन भूमिका निभाई है, वो हमारे साथ है. तीनों का परिचय हो चुका है तो मैं उसमें वक्त जाया नहीं करूंगा. बट वीना सीकरी जी, हम दुनिया में दोस्ती बढ़ाते घूम रहे हैं, पर अगर मैं अपने पड़ोसियों की बात करूं और पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उस पर ही हम सारा वक्त खर्च देते हैं बाज दफा, पर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की अगर हम बात करें, दुनिया से संबंध अच्छे, पर यहां पर कुछ तनातनी का आलम है क्या? Is that a problem? No, I think we have to recognize that for India and for all other countries, but certainly for us, the neighborhood is the most important context. You cannot have a successful foreign policy unless you have a successful neighborhood. Always had a policy of neighborhood first, but are we following it? We have a very good neighborhood first foreign policy for the last 10 years, and I think it has been successful. I'll give the examples of even Bangladesh, I think for the last 15 years. And here I would like to say right away that it's not because India put all her eggs into the Sheikh Hasina basket. No, it is because the Sheikh Hasina government decided to meet India's security red lines. There's a certain charm in speaking to seasoned diplomats like you. You've already anticipated my next question. Yeah, well, मैंने इसलिए anticipate किया क्योंकि पूरी दुनिया यही पूछ रही है. भाई शेख हसीना यहाँ बैठी है, नई वहाँ पर सरकार बन गई, तारिक रहमान है. We invested a lot of time, effort in having or building good relations with Sheikh Hasina. उसको यहाँ अब हम पनाह देते घूम रहे हैं, नई सरकार बन गई. हम कहाँ हैं? We built good relations with the Awami League government because they met India's security red lines. And I think in neighborhood, that's why it's the most important. Because your security is involved first and foremost, before anything else, before trade, before politics and so on. Now, I think in the last 18 months of the interim government, and I think the very fact of this regime change in Bangladesh, what were the global interests involved? Why did it happen? Was it an anti-India gesture in itself? Did we anticipate the turmoil? I am made to believe that America had sounded out India, there's something happening in Bangladesh and you better have a plan in place. No, I think we knew what was happening. We had an anticipation, but whether the regime, whether Sheikh Hasina's government was able to control it was one thing, and the powers ranged against it were too high. Giving powers into the hands of one particular political force in Bangladesh, the Jamaat-e-Islami,
backed by Pakistan, backed by other countries, meant a totally different approach to what was happening in Bangladesh. It was a Pakistan-driven approach. They were trying to revive, they were the losers in 1971. They wanted to revive their victory, and it affected India's security interests. But I think the Indian government behaved with great restraint, strategic restraint, I would say, and was at every stage ready to have good relations with the government. But I think the elections have shown that the people of Bangladesh did not want a radical government. The people of थोड़ा Bangladesh... कैच 22 में हम फंस गए हैं आज की तारीख में वी वर द मिडवाइफ दाई तो हम थे ना बांग्लादेश हमने बनाया और आज की तारीख में बांग्लादेश में नया निज़ाम आ गया है there's a new regime in place will we have those kind of friendly relations that we were having earlier और शेख हसीना पहले मैं 3 बिंदुओं पर आऊंगा पहला बिंदु शेख हसीना वो गले की हड्डी बन गई है क्या हमारी देखिए जरूर जब बीएनपी सरकार पहले सत्ते में थी बिटवीन 2001-2006 तब रिलेशनशिप मुश्किल थी इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे लेकिन आज की तारीख में आई थिंक नाउ विद तारिक रहमान एज प्राइम मिनिस्टर there is a good understanding between the Indian government and the Tariq Rahman government. And I think what he has done even in the last 2 weeks, do hafte wo satte mein hai, it is showing that he understands the importance of good neighborhood relations. He has even been allowing the Awami League to reopen its offices. He's even taken decisions to change certain key personnel who were there. He's decided there'll be no celebration, no hooliganism, and previously the Hindu community... पर वो दोस्ताना तो ट्रंप के साथ भी बढ़ा रहे हैं our dear friend Trump, they have a reciprocal trade agreement already in place, जिसमें भारत, and correct me if I'm wrong ma'am, भारत 15,000 करोड़ से ज्यादा का कॉटन यान दिया करता था बांग्लादेश को अब बांग्लादेश कॉटन यान और कॉटन लेगा अमेरिका से 15,000 करोड़ का तो नुकसान ये नहीं। और 1 मिनट मैम और 94,000 करोड़ का हम अपैरल कपड़े का व्यापार अमेरिका के साथ करते थे उसमें फायदा हो जाएगा बांग्लादेश का नहीं बात ये है कि जो भी कंसेशंस बांग्लादेश को मिली हैं जो आप कह रहे हैं जीरो टैरिफ अगर वो कॉटन यार्न अमेरिका से खरीदें द सेम कंसेशंस आर देयर इन द इंडिया यूएस trade But we are one of the biggest producers of cotton. No, if I'm वहाँ पर नहीं होता है. No, You are comparing apples and oranges, ma'am. No. Let me explain. First of all, it's not easy to buy cotton from the USA for a country as far away as Bangladesh or India. Double the price, transportation is much more expensive and much longer time. Secondly, if our exports of cotton yarn to Bangladesh go down, we will use those in India. Because I think all the other trade agreements we've signed, whether with the EU, whether with the UK, whether with Australia, they include zero tariff for apparel exports. So we need much more cotton today in India, and our cotton farmers will not be harmed at all. We need more cotton. We need cotton from America. Much more cotton if we want to increase our apparel. And that would include genetically modified cotton also? No, not necessarily. Well, we have BT cotton in India, but whether we're going to grow more BT cotton or other cotton, organic cotton... इस मामले में थोड़ी क्लैरिटी अशोक कंठ साहब आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जब हम विश्व गुरु भरने की ताल ठोकते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना भाई हमें अपने हित साधने हैं दोस्ती यारी भी करेंगे हित साधने हम अपने हित साध रहे हैं पड़ोसियों के साथ देखिए एक तो बात है कि विश्व गुरु की बात अभी करना कुछ थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी पहले में देखते हैं कि हम मतलब आप चैनलों पर छोड़ देंगे हम ही डंका पीटते रहें डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं हो सकता अभी नहीं हो सकता है और जहाँ तक विकसित भारत 2047 का प्रश्न है जो आपने उठाया वो मुद्दा अगर हम उस यात्रा में सफल होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे संबंध सकारात्मक हों अगर सकारात्मक संबंध नहीं होंगे अगर उनको लगेगा कि उनकी विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारी विकास की प्रक्रिया से जुड़ी हुई नहीं है अगर ऐसा उनको लगेगा तो देखिए दोनों के कदम ताल होनी चाहिए उनके हित भी सदें और हमारे हित भी सदें और अगर हम आगे देखना चाहते हैं ठीक है जैसा वीरा जी ने कहा हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हम चाहते हैं कि कुछ रेड लाइन्स है उसका वो पालन करें लेकिन आज की दुनिया में ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो मुल्क हैं छोटे मुल्क और बहुत छोटे मुल्क भी नहीं है बांग्लादेश काफ़ी बड़ा मुल्क है पाकिस्तान बड़ा मुल्क है नेपाल भी बड़ा मुल्क है हम साउथ एशिया की पश्चिमी एशिया की बात करें सर दक्षिणी एशिया की बात करें 55 करोड़ की आबादी है भारत को हटा दे तो वो 55 करोड़ का मार्केट है हम उसे भूलना नहीं चाहिए ये बात संदीप
तो एक चीज़ हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि ये देश जो हैं इन सबको एजेंसी है, उनको ऑप्शंस हैं। अगर हम सोचें कि किसी तरह से एक मनरो डॉक्ट्रिन इंडियन वेरिएंट ऑफ मनरो डॉक्ट्रिन यहाँ हो जाएगा, हमारा एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी हमारे जोन हो satellite जाएगा, state हो जाएंगे, वो नहीं हो संभव सकते। नहीं है, वो संभव नहीं है। पर सर, सैटेलाइट स्टेट हमारे ना हो, वो चाइना के सैटेलाइट नहीं, स्टेट वो तो नहीं वो- बन रहे वो हैं। चीन के भी चीन सैटेलाइट- का दखल इस कदर तो नहीं बढ़ गया। श्रीलंका में तो देखिए- पूरा आधारभूत ढांचा चीन के कब्जे में है। देखिए, मैं चीन में भारत का राजदूत रह चुका मालूम है, हूँ। मैं इसीलिए तो सर जी, पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। श्रीलंका में भारत का हाई कमिश्नर रह चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ ये, और ये मैं ऑनेस्टी से कह सकता हूँ कि कभी भी श्रीलंका चीन का सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए, श्रीलंका और भारत के संबंध हैं, ये बहुआमीय संबंध हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। ये हम सब कभी कभी इसको हम पूरी तरह से समझते नहीं हैं कितना हम जुड़े हुए हैं। अगर हमें उस संबंध को और मजबूत बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो ये लिंकेजेस हैं सो और मजबूत बनाएं। ये लिंकेजेस में ये कहीं चाइना वो कड़ियां obsession से काम नहीं चलेगा। कड़ियां बीच में कहीं कुछ जुड़ने में दिक्कत तो नहीं हुई थी अब 2022 में? और खास बात ये, आप तीनों जिन मुल्कों में हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो चाहे नेपाल हो, नेपाल में जेनजी हमने अभी देखा, वहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, उस पर आएंगे। हमने बांग्लादेश में 2024 में देखा किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, तख्ता पलट हुआ। और 2022 हमने श्रीलंका में देखा। श्रीलंका में हमने लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। कुछ कड़ियां टूट गई थी, अब उन्हें हम फिर से जोड़ रहे हैं क्या? हाँ, कुछ कड़ियां जरूर टूट गई थी किसान और आई के एकेडी के साथ फिर कहीं से कहीं हमने देखिए, अपना राब्ता कायम किया है। लेकिन आप अगर देखिए कि उस समय जबकि श्रीलंका का क्राइसिस हुआ, और ये दोनों तरह से राजनीतिक क्राइसिस था और आर्थिक क्राइसिस था, वो मेल्ट डाउन हो रहा था उनका। कौन उनके साथ खड़ा हुआ? भारत खड़ा हुआ, चीन तो खड़ा नहीं हुआ। और ये उन्हें पता है कि चीन खड़ा उनके साथ नहीं हुआ। हमने करीब 4 अरब डॉलर का उनको सहयोग दिया और उसके कारण उनके लिए संभव हो पाया कि उस क्राइसिस से वो निकल पाए, और ये उन्हें पता है। और आप फिर देखिए, वहाँ जबकि सत्ता में परिवर्तन आया और रनिल विक्रमसिंघे की जगह अनुराग कुमार दिसानायके आए, वो प्रक्रिया अगर सहल हो पाई, इसका कारण है कि हमने ये समझा कि अनुराग कुमार दिसानायके आएंगे तो उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा हो सकता है। वो ऑपोजिशन कैंडिडेट थे, जबकि भारत सरकार ने उनको न्योता दिया कि आप आइए और हमसे बात कीजिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इन देशों में जो इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होता है, अगर उसमें अगर हम दखल करेंगे, ये हमारे हित में नहीं है। ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और ऐसे में रंजीत जी, बात आ जाती है नेपाल की। और नेपाल के साथ तो हमारे ऐसे संबंध हैं, बेटी रोटी का रिश्ता है उनके साथ तो। पर नेपाल में भी दिक्कतें आई। जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, हम जिस पर बैंक कर रहे थे, वहाँ निज़ाम भी बदले हैं। वहाँ तो पिछले 10 सालों में 9 सरकारें बदली जा चुकी हैं और 5 मार्च को 10वीं सरकार बनने जा रही है। तो आज की तारीख में भारत और नेपाल का रिश्ता क्या कहलाता है? सर, माइक प्लीज। You see, India and Nepal have a very, very strong relationship. You know, fundamentally, you look at trade, look at the cultural and other linkages. 1700 किलोमीटर का तो खुला बॉर्डर है। Open border, people can move without visas and passports. A very, very strong relationship. And it's a very close relationship. In any intimate relationship, there will be problems from time to time. You may have excellent relations with a country 10,000 miles away from you because, you know, there's not too much going on between the two of you. With a neighbor, and especially in a neighborhood that is so asymmetric, अगर आप भारत का भौगोलिक साइज देखेंगे या पॉपुलेशन साइज देखेंगे उसको, and you compare it to Nepal, you can see. So I think the first thing we have to do is understand the psychology of our neighbors, one. Secondly, I think Veena mentioned neighborhood first policy, which is basically strengthening connectivity, linking the economies of these neighboring countries together, you know, with India, and giving them a vested interest in the growth story You in our used a very, subcontinent. very interesting term. वो मानस समझने की बात है। मानस वो तो हमारे जैसे ही है। नेपाल का तो मानस हम जैसा ही था, या हम उन पर अपनी बातें कुछ ज्यादा थोपने लगे, और डिड वी स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड?
So let me give you an anecdote. I was meeting a former Prime Minister of Nepal once. And you know what he said to me in Hindi, and I'll translate it in English for our foreign friends. He said, आप भाई भाई की क्यों बात करते हैं? भाई भाई में तो एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है. हम तो बराबर हैं. हम तो मित्र होना चाहते हैं. You know, why does India talk about a brotherly relationship between India and Nepal? Because in a brotherly relationship, you have an elder brother and a younger brother. And we don't want to be anyone's younger brother. We want to be equal partners. So, नेपाल ने भी बीच में फिर कहा कि देखिए भैया ये छोटे भैया बड़े भैया वाला खेल कुछ ज्यादा लंबा चल गया. absolutely. वहां So, दिक्कतें शुरू हुई. So, you know, we have to be sensitive to this psychology of the relationship, one. Secondly, we must understand what is happening in these societies. There is a changing demographic. It's these are countries with very young people. Median age is 24 or 25. Digitally very aware. Huge diaspora. So they go abroad, they see on social media what's happening in the rest of the world, and they say, why are we not developing? What are our leaders doing? ये आपने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है और वीना जी यहाँ ये चर्चा आप तीनों से ही करूंगा पर आपसे शुरू कर रहा हूँ. देखिए हम वसुदैव कुटुंबकम ताल ठोकते हैं दम भरते हैं. द एंटायर वर्ल्ड इज आवर होम. और आजकल भारत में शगल या विमर्श चल रहा है घुसपैठियों का. बात बात पे जो घुसपैठिए आते हैं और घुसपैठियों की पहचान होगी आज तक नंबर नहीं बताया गया है, वो अलग बात है. और बांग्लादेश उसमें है और नेपाल भी आ जाता है. तो आप घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे, उनको वापस भी भेजेंगे. उधर हम एक ईयू के साथ एफटीए करते हैं. ईयू के 29 देशों में कोई भी कहीं आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है. तो यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे हैं और घरेलू राजनीति में जो कर रहे हैं उसमें कोई सामंजस्य. इज देयर अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दैट यू सी इन प्लेस? Let me make it very clear. One is friendship between the peoples. This is very important, exactly what Ranjit said, that we have to not only want to have the friendship, but we have to show, and the people of that country, Nepal or Sri Lanka or Bangladesh, must feel that friendship with India is good for them. That's one very important part. आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया जाए, उस पर देश में बवाल नहीं, कट वो तो जाता ठीक है और हटा दिया जाता है. क्रिकेट How की बात does तो that अलग pan out है. diplomatically? मैं ma'am? क्रिकेट की बात तो अलग है, क्योंकि जो क्रिकेट की दुनिया है उसमें मैं क्यों नहीं, घुसूं? ये हमारी दुनिया है. क्रिकेट की दुनिया तक कैसे सीमित रख देंगे आप इसे? लेकिन नहीं, देखिए वो फ्रेंडशिप एक और तौर पे है. बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भारत ने सबसे ज्यादा आप किया. साइलोज में दोस्ती करेंगे नहीं, कि साइलोज इस में चीज नहीं. में मैं दोस्ती कह रही हूँ करेंगे, कि इसमें नहीं करेंगे. देखिए क्रिकेट की बात जो है, इंडिया हैज डन absolutely the maximum to bring Bangladesh into international cricket, and we have succeeded. And always we will have the friendship of our neighbors for cricket. Even Nepal has started playing cricket now, which is very good. I'm talking about the people, and I'm talking about illegal immigrants. जो आपने घुसपैठियों की बात की, वो illegal immigrants के हैं. अगर अमेरिका है, they have illegal immigrants from Mexico, from other places, and we know that they have a great. So dealing with illegal immigrants, having a system in place to prevent illegal immigrants is perfectly all right. नहीं, मेरा it is सवाल not different from people to मैं people. समझ गया. It's मैम quite different. अशोक कंठ जी, मेरा सवाल ये था, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और घरेलू राजनीति उसमें भी एक तारतम्य होना चाहिए कि नहीं होता है, या कोई जरूरी नहीं? घरेलू राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं, देयर आर देयर ओन कंपल्शंस, एंड इंटरनेशनली वी माइट बी ऑन अ डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर. देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग और दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता. घरेलू जो राजनीति है उसका हमारे विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा और हर मुल्क में होता है. लेकिन वेयर टू स्टॉप, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है. अगर हर प्रश्न को हम घरेलू राजनीति के प्रिज्म से चश्मे से देखें और ख़ासकर पार्टिजान चश्मे से देखें तो उसमें परेशानी हो जाती है. देखिए ये अभी हमें हमारे विदेश प्रॉब्लम एरिया है, ये प्रॉब्लम एरिया, ये एक चैलेंज है, चुनौती है, चैलेंज है. और मेरा इस पे विचार रहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें डिस्पैशनेटली ऑब्जेक्टिवली देखना उसमें होगा. सबसे बड़ा प्रश्न फिर मैं उसी पर मैं एक बात अगर प्लीज मैं प्लीज कह दूं उसमें, सॉरी फॉर ये इंटरप्टिंग. ये एक अहम मुद्दा है. ये हमने बार बार देखा है कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का मुद्दा रहा है. श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल का रहा है, नेपाल में मधेसी का रहा है,
बांग्लादेश में हिंदू जो माइनॉरिटी का रहा है। ये ऐसा एक अहम प्रश्न है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हमें सोचना पड़ेगा कहाँ तक हम उस पर दखल दे सकते हैं, कहाँ डायरेक्टली दखल दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत सेंसिटिव मसला है, ये हमें ध्यान में रखना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो रंजीत ने इसका जिक्र किया, इन सब देशों में यूथ है और यूथ एस्पिरेशंस है, वो कहाँ तक अब भारत से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ये परेशानी हो गई है। मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उस समय नेपाल के बहुत छात्र वहाँ आते थे। अब वो नहीं हो रहा है। अब उनके जो नेता हैं अगले जनरेशन के, कोई भारत में पढ़े हुए नहीं रहेंगे। तो ये सब हमें देखना हो, क्यों ऐसा हुआ, इन कि बारीकियों पर गौर क्यों करना ऐसा हुआ कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में ये एक के बाद एक ये हुआ, ये मुद्दा तथाकथित उठा। क्रांति क्यों कहिए उठा? या सड़कों पर युवा निकला। युवा But- क्यों but निकला? We ये also हमें have to look at सोचना external पड़ेगा। influences. We also have to look at बाहर से भी जो ताकतें आ रही हैं उसको भी देखना है। दोनों चीजें हैं। हमारी भी यूथ है, हमारा भी जेन जी है, उनके एस्पिरेशंस, उनके हमारी देश के सरकार की तरफ से हमें सबक लेना चाहिए। जी संदीप, मैं यहाँ वीना जी से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये सब जो हुआ है, जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, ये इंडोजेनस है। ये उनका लार्जली आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला है। इसको कह देना कि किसी ने आकर एक तरह से मैं हम नहीं, आजकल कंस्पिरेसी थियरीज वो उसका जमाना आ गया है। सीजन ऑफ ये हमें हर बात acknowledge में करना साजिश हो पड़ेगा। जाती है। पर आखिरी सवाल जो मैं रंजीत जी और आप सबकी इस पर एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ऐसे में माय डियर फ्रेंड, ट्रंप भी चल रहा है और ट्रंप कभी 50% कर देता है, कभी 10, कभी 15% भी कर देता है। तफसील हमारे पास अभी सामने आ नहीं रही। इस बीच वी ऑल्सो रीच आउट टू चाइना और शी जिनपिंग से हाथ मिला लेते हैं। झूला झूल रहे थे, वो झूला झूलना बंद किया, फिर झूला झूलने लगे। पुतिन हमारे सदाबहार ऑल वेदर फ्रेंड हैं या नहीं हैं, अब वो सवालों के घेरे में आ गया। तो क्या हम अपने हित साध रहे हैं या हॉप स्किप एंड जंप कर रहे हैं? You know, I think all the smaller powers are also extremely worried and disturbed by what's happening. And I think they see more challenges rather than opportunities in what's happening in the world. So I think India has a good opportunity to draw the whole region together. We are already doing that through our connectivity initiatives. But, you know, say hydropower, for instance, we buy from Nepal and Bhutan. We used to sell to Bangladesh. I don't know if it still continues. One point. Second, what I want to say is we should not allow our political differences interrupt the economic partnership and cooperation that happens. And about your earlier question about Mustafizur Rahman, I just want to make one point. See, obviously domestic policy impinges on foreign policy. Sometimes what happens is you have a hierarchy of interests. Your domestic interests might override your foreign policy related, you know, objectives or interests. Political interest should not be paramount. It should be national interest. Nation's interest rather than a political interest. Absolutely, I agree with you. Absolutely, absolutely. Absolutely, I agree. सर, इसमें एक और बात, जो ये चीन की बात हो रही है, तो हम अमेरिका से भी दोस्ती कर रहे हैं, चीन से भी कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी ये रायता तो नहीं फैल रहा है कूटनीति के नाम पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये जो मेजर पावर्स हैं, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। लेकिन ये भी हमें देखना है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। अभी आप भारत चीन संबंध में देखिए, तो मैंने ये बार बार लिखा है कि रीसेट की बात करना, ये कहना कि एक बार फिर सब हमारे संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, ये रियलिस्टिक नहीं है। वैसे ही भारत अमेरिका के संबंध में दरार आए हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो चुनौतियों का दौर है, और इस चुनौतियों का दौर है। चुनौतियों का दौर है। वीना जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस चुनौतियों के दौर में भारत अपने आप को जहां खड़ा पा रहा है, जहां अपने आप को देख रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पर सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? तत्काल, अगर कोई तत्काल स्कीम हो डिप्लोमेसी की। नहीं, डिप्लोमेसी नेबरहुड सबसे ज्यादा महत्व उसका है। अगर हम- नेबरहुड फर्स्ट। जी,
नेबरहुड फर्स्ट। जी एब्सोल्युटली। हम विश्व के तौर पे बड़े नहीं बन सकते जब तक हमारी नेबरहुड की पॉलिसी स्ट्रांग ना हो। चाइना पहले रीजनली वो कंसोलिडेट किया पूरे खित्ते पर, उसने दोस्ती यारी की, फिर वो ग्लोबल अप्रोच पर गया। हम उल्टा तो नहीं कर रहे, उल्टी गंगा तो नहीं बहा रहे। This has to be simultaneous because our strategic autonomy policy is very good and very strong. We have to make friends with our neighbors and with all the big countries. The big countries should also understand that we want friendship with them, but they have to also understand India's interest in a neighborhood first, a good neighborhood, a strong neighborhood. And I think that this is an important interaction that we have to establish at the global level and at the regional level. It's a challenge, please. but we have to take it. Just 2 points. One, you know, after seeing what has happened in our neighborhood, make youth the focal point of our foreign policy, one. Secondly, make economic cooperation, economic partnership, development the core of the policy. तो हमें अपने हित साधने हैं, come what may. Interests are paramount and national interest, not particular political interest. और उसमें पड़ोसियों को तो साथ लेकर चलना होगा अगर विश्व गुरु बनने का जो ये सपना है उसे साकार करना। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए। थैंक यू सो मच।